ਉਜਬਲ ਬੀਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਗਰਤ ਪਰਤ ਗਹਿਲੇ ਹੋ ਅੰਗੁਰੀਆ ਗਰਤ ਪਰਤ ਗਹਿਲੇ ਹੋ ਅੰਗੁਰੀਆ ਸ਼ਰਵਨ ਨਾ ਸੁਰਤ ਨੈਣ ਸੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਵਨ ਨਾ ਸੁਰਤ ਨੈਣ ਸੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਰਤ ਦਵਾਰ ਰਟਤ ਪਿੰਗੁਰੀਆ ਆਰਤ ਦਵਾਰ ਰਟਤ ਪਿੰਗੁਰੀਆ ਦੀਨਾਨਾਥ ਅਨਾਥ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਦੀਨਾਨਾਥ ਅਨਾਥ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਸਾਜਨ ਮੀਤ ਪਿਤਾ ਮਹਿ ਤਰੀਆ ਸਾਜਨ ਮੀਤ ਪਿਤਾ ਮਹਿ ਤਰੀਆ ਚਰਨ ਕਮਲ ਹਿਰਦੈ ਗਹਿ ਨਾਨਕ ਚਰਨ ਕਮਲ ਹਿਰਦੈ ਗਹਿ ਨਾਨਕ ਭੈ ਸਾਗਰ ਸੰਤ ਪਾਰੇ ਉਤਰੀਆ ਤੁਮਰੀ ਸਰਣ ਤੁਮਾਰੀ ਆਸਾ ਤੁਮ ਹੀ ਸੱਜਣ ਸੁਹੇਲੇ ਤੁਮ ਹੀ ਸੱਜਣ ਸੁਹੇਲੇ ਰਾਖੋ ਰਾਖਨ ਹਾਰ ਦਇਆਲਾ ਨਾਨਕ ਘਰ ਕੇ ਗੋਲੇ ਨਾਨਕ ਘਰ ਕੇ ਗੋਲੇ ਨਾ ਹੋ ਜਤੀ ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧਾ ਜਨਮ ਭਇਆ ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੀ ਸਰਣਾ ਜਿਨ ਤੂ ਨਾਹੀ ਵਿਸਰਿਆ ਜਿਨ ਤੂ ਨਾਹੀ ਵਿਸਰਿਆ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਤੇ ਊਚਾ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਉਧਰੇ ਮੂਚਾ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਤੇ ਊਚਾ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਉਧਰੇ ਮੂਚਾ
ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ 부ਜੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਕਿਛ ਸੁਝੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਨਾਹੀ ਜਮ ਤਰਾਸਾ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਪੂਰਨ ਆਸਾ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਮਨ ਕੀ ਮਲ ਜਾਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਰਿਦ ਮਾਹਿ ਸਮਾਏ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਬਸਹਿ ਸਾਧ ਕੀ ਰਸਨਾ। ਨਾਨਕ ਜਨ ਕਾ ਦਾਸਨ ਦਸਨਾ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਬਸਹਿ ਸਾਧ ਕੀ ਰਸਨਾ। ਨਾਨਕ ਜਨ ਕਾ ਦਾਸਨ ਦਸਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਜਾਨ ਰਾਜ ਭਾਨਾਨ ਭਾਨ ਦੇਵਾਨ ਦੇਵ ਉਪਮਾ ਮਹਾਨ। ਚੌਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਤੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੁੜ ਮਿਲ ਬੈਠਣ ਦੀਆਂ ਇਹ ਅਮੋਲਕ ਘੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਤਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਤਖਤਾਂ ਪਰ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਪ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ, ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ, ਸ੍ਰੀ ਆਸਾ ਜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ, ਕਦੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੋ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਸਦਕਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸਰੂਪਦਾਸ ਭੱਲੇ ਨੇ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਦਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਢੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਲੋਕ ਤੇ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਲੋਕ ਤੇ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੀਰਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਚਮਕਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਬਲਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਹਰਿਮੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹਰਿਮੰਦਰ ਹੈ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ। ਇਹ ਬੜੇ ਭਾਵ ਪੂਰਤ ਬਚਨ ਨੇ। ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ, ਅੰਤਰ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ
ਸੁਖਮਣੀ ਰੂਪ ਹਰਮੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਜਾਏ, ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਰੱਬੀ ਧੁਨੀਆਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਤਪਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਖੈਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਓ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਤੇ ਟਿਕਾਈਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੋਖੜਾ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੱਕਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਠੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਦਰਿਆ ਵਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਰਵਣ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਟਿਕਾਈਏ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖਣਾ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਤੇ ਊਚਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਉਧਰੇ ਮੂਚਾ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਪਹਿਲੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਚੌਥੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਭ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਸਭ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ 1 2 3 4 5 ਨਹੀਂ, ਸਭ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮੂਹਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਆਪਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦੂਜੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੀਜੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਅੰਦਰ ਵਰਤਣੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਅੰਦਰ ਜਾਗਣਾ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਲਓ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਸਿਮਰਨ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਿਮਰਨ ਵਰਗਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਮਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੀਨਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੋਦ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੋਦ ਵਰਗੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾ ਆ ਕਿ ਪਦਵੀ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾ ਆ ਵਡਿਆਈ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾ ਆ ਕਿ ਪੈਸਾ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਿਰਤਾਜ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੰਦਿਆ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਆਪ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਾਜਣ ਵਾਲੇ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਬੈਠ ਜਾਏ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਿਮਰਨ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦੀਸੈ, ਤਿਨ ਜਮ ਜਾਗਾਤੀ ਲੂਟੈ, ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੋ ਕਰਤੇ ਕਾ, ਨਿਮਕ ਸਿਮਰਤ ਜਿਤ ਛੂਟੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਤੇ ਸਫਲ ਹੈ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ,
जे प्रभु की याद नहीं, कई बारी बंदा सेवा करदियां भी निंदिया जिहड़ा कर करके ते पाप खट्टी जा रहे, माफ करना जी। गुरबाणी नूं पढ़ो, सेवा करन दा तरीका महाराज सानू बख्शदे ने। प्रभ का सिमरन सब ते उच्चा, ते मैं बेनती करां इहदे गहरे भाव ये ने, सिमरन करदियां करदियां जदों प्रभु की याद अंदर बह जाए ना, एक एक काम जिहड़ा वो उच्चिया हो जाता है। ये गहरे भाव ने। थोड़ा आपां इन्हां शब्दां दे उत्ते मैनूं जदों ये कहा गया ना सुखमनी साहिब जी दी विचार, तो मेरे मन च आया नहीं आपां अखरी अर्थ करके लंघ जाते हैं, रोज़ लंघ जाते हैं, पर जो धन गुरु अर्जन देव जी एक एक हीरा सानू बख्शदे पे आ, धन गुरु अर्जन देव जी आप बख्शिशां करन ते उन्हां हीरियां दी सानू कदर आ जाए। धन गुरु अर्जन देव जी कहंदे ने प्रभ का सिमरन सब ते उच्चा। बंदिया जिथे प्रभु का सिमरन है वो सेवा भी प्रवान, वो पूजा भी प्रवान, वो कीता होया नितनेम भी प्रवान। जिथे प्रभु का सिमरन नहीं वो काम उच्चा नहीं हो सकता। बाणी पढ़नी, सेवा करनी, मैं बेनती करा सेवा का ढंग तरीका असी रोज़ पढ़ते हैं पर पढ़ के तो छड़ जाते हैं। मेरा ख्याल ये शब्द हर एक सिख नूं याद होवेगा, सतगुर की सेवा सफल है। सतगुरु पातशाह जी की सेवा सफल, फल सहित है। सफल, सफल के अर्थ ने फल के सहित होना, जिहड़ा काम करके फल मिले। तो फल किहड़ा मिलना? ब्रह्म ज्ञान। फल किहड़ा मिलना? प्रभु का प्यार। फल किहड़ा मिलता है कि प्रभु परमात्मा हिरदे दे अंदर टिक जाते ने। सतगुर की सेवा सफल है। पर धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज कहते जे को करे चित लाए। चित ला के दे अर्थ की ने? चित ला के दे अर्थ ने प्यारिया तेरे हत्थां दे विच गुरु नानक दियां संगतां दे जोड़े होण, तेरे हत्थां दे विच गुरु नानक दे घर दियां संगतां दे जूठे बर्तन होण। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज कह रहे ने बंदिया हत्थां नाल तू सेवा करदा होवे, रसना नाल नाम जपदा होवे ते हिरदे दे अंदर वाहिगुरू जी दी याद बैठी होवे। वाहिगुरू दी याद किवें बिठा लणी सेवा करदे? थोड़ा जा मैं प्रकरण चों निकलिया पर मेरे मन च सी प्रभ का सिमरन सब ते उच्चा। ओही काम उच्चे ने जिथे प्रभु का सिमरन है, जिथे प्रभु की याद है। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के शब्दों को थोड़ा जा आपां खोलण वास्ते मैं बेनती करा, धन गुरु ग्रंथ साहिब आप कृपा करन। सतगुरु की सेवा का थोड़ा जा आपां विच प्रकरण लिया है। प्यारिओ तेरे हत्थां विच गुरु घर दे विच आण के गुरु नानक दियां संगतां दे जोड़े होण, बर्तन होण, होर अनेकां प्रकार की सेवा आ। पर चित्त दे विच रब नूं किवें वसाउणा आ, चित्त दे विच गुरु नूं किवें वसाउणा आ। तू बर्तन मांजदिया होया केवल बर्तनां दी गिणती ना करी जावीं कि मैं 5 मांज लिया, 15 मांज लिया, 20 मांज लिया। तू एक एक जदों बर्तन तेरे हाथ विच आवे ते इस तरह समझ ये गुरु नानक साहिब जी आप उन्हां दा बर्तन मेरे हाथ विच आया। जे को करे चित लाए। बंदा यही समझदा कि मैं लोकां दी मैल धोंदा पिया ये सेवा करदे हां। असीं यही सोचदे हां ना कई बारी लंगर दे विच खड़े हुंदे हां। मेरा ख्याल ते मेरे कहण दा भाव ये नहीं कि सेवा ना करिए, नहीं सेवा करिए पर अंदर चित ला के। गुरु साहब जी आप तरस करके करवा लें। बंदा ये ना समझे सेवा करदे होया मैं लोकां दे झूठे बर्तन, लोकां दी झूठ दूर कर रहा हां। सेवा करदियां ख्याल अंदर आवे धन गुरु नानक साहब अपने घर की सेवा बख्श के मेरे अंदर की झूठ नूं आप जी धो रहे हो। ये है जे को करे चित लाए। प्रभ का सिमरन सब ते उच्चा। प्रभु का सिमरन वो उचाइयां तक बंदे नूं लै जांदा आ जिहड़ियां उचाइयां तक लखां सियाणपां नहीं लैके जा सकदियां, जिहड़ियां उचाइयां पैसिਆਂ नाल नहीं खरीदियां जा सकदियां, चलाकियां करके जिन्हां उचाइयां ते नहीं पहुंचा जा सकता है। जिन्हां उचाइयां तो बुद्धि खंभ झाड़ बैठी भाई वीर सिंह जी दियां तुकां मल्लो मल्ली दिल उत्थे मारदा उडारियां। वो उचाइयां
प्यारिओ ਜਿਹੜੀਆਂ दुनिया ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ दुनिया ਦੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਤੇ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਨਾਲ नहीं पहुंचा जा सकता है, सच्ची गल है सिमरन उन्हां उचाइयां तक लै जांदा है। ऊंचे उपर ऊंचा ना हो, ये सिमरन की बख्शिश है, सिमरन की ताकत है। सिमरन इहो जी अमोलक वस्तु है। सच्ची गल है जिथे सिमरन है उत्थे वाहिगुरु जी आप ने। ये वार वार असीं कह रहे हैं सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम, उही तुकां दी व्याख्या गुरु अर्जन देव जी कर रहे हैं। प्रभु दा सिमरन क्यों सब ते उच्चा आ? क्योंकि प्रभु दा सिमरन करदिआं प्रभु आप पहुँच जाता है दरवाजे ते। जिथे प्रभु दा सिमरन होवे, मैं बेनती करां रात दे इतिहास दे विच जिहड़े गुरमुख सज्जन सुनदे आ, रात दा चलदा होया गुरु अर्जन देव जी दा इतिहास, भाई सद्धू दे दिल दे अंदर गुरु दी याद है, वार वार गुरु नानक गुरु अर्जन देव जी दा सिमरन कर रहा है। मैं बेनती करा सिमरन करके उन्होंने कोई चिट्ठी नहीं पाउणी पई गुरु अर्जन नूं, आप गुरु अर्जन देव जी उहदे दरवाजे नूं खड़काउंदे। भाई लालो जी कोल किहड़ी वो अमोलक दात सी, धन गुरु नानक जगत जलंदे दा उधार करदे। कदे भाई लालो नूं शरीर करके नहीं सी मिले। भाई लालो जी कोल किहड़ी वो अमोलक दात सी जिस दात करके जगत जलंदे दा तपदा होया कलेजा ठारन वाले धन गुरु नानक साहब ने आप उहदा दरवाजा खड़काया। भाई लालो दे कोल प्रभु दा सिमरन सी, प्रभु दी याद सी। प्रभ का सिमरन सब ते ऊंचा, हर सिमरन मह आप निरंकारा। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते प्रभु दा सिमरन ही सब तो उच्चा है। प्रभ कै सिमरन उधर है मूचा। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज सच्चे पातशाह जी कहते ने बंदिया प्रभु दे सिमरन करके मूचा दे अर्थ ने अणगिणत बहुते जिन्हां दी गिणती ही ना कीती जावे। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते सिमर ने अणगिणत नूं तार दिता है। असी पढ़ते हैं ना, देवा पाहन तारियले राम कहत जन कस न तरे। तारीले गनका बिन रूप कुबजा ब्याद अजामल तारियले। जिन्हों दुनिया के लोग पतत कहते सी, जिन्हों दुनिया के लोग कहते सी ये खुंज गए ने, ये डुब गए ने, ये कुछ नहीं। सच्ची गल है प्रभु दे सिमरन अंदर एडी वड्डी बख्शिश ते रहमत है। जदों प्रभु दा सिमरन एक वेशवा ने किया, वह भी साधु दा रूप धारण करके। प्रभु दा सिमरन अजामल पापी जग जाने, निमख माए निस्तारा। जदों प्रभु दा सिमरन एक जगत विच जाने गए पापी दे दिल च बैठ गया ना, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी कहते निमख दे विच उतर गया। प्रभ कै सिमरन उधरे ऊंचा। ये प्रभ का सिमरन सब ते ऊंचा दे अर्थ कर रहे हैं गुरु अर्जन देव जी। क्यों है सब तो उच्चा प्रभु दा सिमरन? क्योंकि प्यारिओ जिन्हों दुनिया दे लोग दुलकारदे आ, जिन्हों दुनिया दे विच कोई भी नेड़े लाउण लई तैयार नहीं, जेड़े दुनियावी लोग जिन्होंने फिटकारा पाउंदे आ, लाणतां पाउंदे आ, जेड़े दुनिया दे रस्ते तो खुंज जांदे आ, प्रभु दा सिमरन इतना उच्चा है उन्होंने भी पवित्र करके रख दिंदा है। प्रभु दा सिमरन उन्होंने चुक के ते प्रभु तक लै जाता है। प्रभु दा सिमरन जन्मां जन्मां दे बंधन तोड़ के रख दिंदा आ। प्रभु दी याद इहो जी है। मैं फिर बेनती करां गुरमुख प्यारिओ, जदों नाम जपदे आ, बाणी पढ़दे आ, छोटा जिहा विश्वास लैके ना जपजी साहब दा गुटका तेरे हाथ च आवे कि ये अखर ने। जपजी साहब की बाणी उत्ते इन्ना विश्वास होवे, ये ओ जपजी साहब है जिहड़ी जपजी साहब पढ़दे आ भाई लखू उत्ते बख्शिशां हो गई। भाई लखू पहला चोरियां करते सन। प्रभ जी बसै साथ की रसना, आपां उत्थों तक पहुंचना है। एक चोर बंदा जदों बाणी पढ़ी, प्रभु का सिमरन किया, प्रभु की याद अंदर वस गई। सच्ची गल है फिर जदों भाई लखू बोलते सी वो बचन सत हुंदे सी। ते भाई लखू ने अपनी जिंदगी के अंदर एक नेम बनाया सीगा
कि मैं उस घर विचों प्रशादा छकांगा जिस घर विच सारियां नूं जपजी साहब दा पाठ कंठ होवे। नहीं तो जांदे नहीं सी घर दे अंदर। ते भाई लखू दे चरण अपने गृह विच पवाउण वास्ते ना सारा लाहौर जिहड़ा है जितनियां माइयां सीगियां उन्होंने सारे जपजी साहब कंठ कर लिया सी। ये प्रभु सिमरन करन वाले दे अंदर दी बख्शिश है। प्रभ का सिमरन सब ते ऊंचा, प्रभ कै सिमरन उधरे मूचा, कितने अनगिणत ने। असी कहते हैं ना, आम साडी कहावत है, तारे गिने जात है ना तारे गिने जात है। आकाश दे तारे तो कोई बंदा विज्ञानक गिन सकदा आ, हालांकि उन्हां दी भी गिनती अज तक होई नहीं मुकम्मल तौर उत्ते। हुण भी विज्ञानक जिहड़े आ, साइंटिस्ट जिहड़े आ, नवें तो नवीं खोजां कर रहे आ। पर मन लो जो दुनिया दे विच तारा मंडल आ वो गिणिया जा सकता है, पर ना तारे गिने जात है। जिन्होंने प्रभु के नाम ने तारिया वो तारे जिहड़े वो गिने नहीं जा सकते। प्रभ कै सिमरन उधरे मूचा। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते छोटे विश्वास नाल ना नाम जप ढैंदी कलां दे विच ना नाम जप ढैंदी कलां दे विच ना बाणी पढ़। तू ये आख परमात्मा मैं वो नाम जपन लगा हाँ, मैं वो गुरमंत्र अपनी रसना ते बिठालन लगा हाँ, मैं वो आप जी का बख्शिया होया गुरबाणी का पाठ कर लगा हाँ, जिस नाम नू जपदियां गनका वर्गियां का उधार हो गया। सज्जन वर्गे ठग्गां नू भी साध बना देता, कौडे वर्गे राक्षसां नू भी संत बना देता, भूमीए वर्गे चोरां नू भी तुसी गल नाल ला लिया। इस नाम दे करके, इन्हां बचनां नू मनन करके, प्रभु दी याद करके उन्हां दा उधार हो गया। सच्चे पातशाह कृपा कर, मैनू पापी नू भी इस सिमरन दे राही अपनी याद बख्श के ते बख्शा लो। इस तरह बैठ के नाम जपीए। असी तो मैं बेनती करा, साडे तां गुटका हत्थ विच आया हुंदा आ ते असी यही समझते हैं कि अखर आपां रिपीट कर रहे हैं, वो अखर नहीं। धन गुरु नानक साहब जी दे संग ते गुरु नानक दा अंदर है। प्रभ का सिमरन सब ते ऊंचा, प्रभ कै सिमरन उधरे मूचा। ये ओ जपजी साहब दा पाठ है जिस विचों अमृत दे दरिया वहंदे आ रहे ने। ये ओ सुखमनी साहब जी दी बाणी है जिसनों माता गुजरी जी आप नितनेम विच पढ़दे सी। इस विश्वास नाल बैठ के नाम जपीए। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज अगां बख्शिशां करदे ने, ये प्रभु दा सिमरन सब तो उच्चा क्यों है। प्रभ कै सिमरन तृष्णा बुझै। ये पाठ पोला करना है, बुझै बुझ जाना जिन्हों असी कहंदे। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहंदे कि जिहड़ी अंदर तृष्णा दी अग सी ना, सच्ची गल है, बंदा जम के मर जाता है पर तृष्णा दी अग नहीं मरती। बंदा जन्म लैके चले जाता संसार तो, और अंदर दी अग नहीं मुकदी। असी सोचते सी अमरीका आके अग बुझ जाएगी, कि बुझ गई अंदर तृष्णा दी अग। सहूलतां मिल गई ने, ठीक है, सब कुछ है, पर जिहड़ी अंदर अग रात नूं बंदे नूं निगलदी है वो तो कदे गई नहीं। देश छोड़ परदेसै धाया, देश छड्ड के होर कंट्रियां विच बंदा जांदा है, सोचदा कि मैं सुखी होवांगा। नहीं, ये गल पक्की है, सुख दीयां सहूलतां जरूर बंदे नूं मिलदियां, पर सुख जिहड़ा है बंदिया तेरे अंदरों ही पैदा होना है। प्रभ कै सिमरन तृष्णा बुझै। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने, प्रभु दा सिमरन सब तो उच्चा तां है बंदिया जिस अग नूं दुनिया दे पदार्थ नहीं पूरियां कर सके, जिस अग नूं तेरे रिश्तेदार तेरे नेड़े दे संबंधी नहीं बुझा सकते, जिहड़ी अग जन्मा जन्मा तो तेनू वार वार झोक रही है ना, उस तृष्णा की अग नूं प्रभु की याद ने खत्म करके रख दिता, वो बुझ गई है। तृष्णा ये तकरीबन 3 प्रकार की मनी गई है विद्वानां कोलों। विद्वान कहते ने एक तृष्णा हुंदी है पदार्थां की, धन की, पैसे की। एक तृष्णा हुंदी है संतान की, धीआं पुत्रां की, गां उन्हां दे धीआं पुत्रां की होर। एक तृष्णा हुंदी है वडियाई की। इन्हां 3 चीज़ां दे विच सारी दुनिया दीयां जिहड़ियां तृष्णा आ, जिहड़ी अंदर दी ए खिच आके होर मिले होर मिले होर मिले, ये सब इन्हां 3 चीज़ां दे आले दुआले घुमदियां ने।
मैं बेनती करा, ना पदार्थां ने अग बुझाउणी है, ना संतान ने अंदर दी अग नूं बुझाउणा है। इस गल नूं प्लीज़ मैनूं माफ़ कर दिओ जे सोचांगे जी ज्ञानी जी किहड़ी गल करदे पए आ, पर अपने अंदर नूं पुछ के देखो कि पदार्थ इकट्ठे करके अग बुझ गई है? असीं सोचदे सी संतान होवेगी अग बुझ जाएगी, नहीं बुझदी। बंदा सोचदा मेरी इज्जत होवे संसार दे विच, पर सच्ची गल है इज्जत दे नाल भी अंदर दी अग बुझदी नहीं। हाँ ये है जरूर कि बंदे दा हंकार वध जांदा है। दुनिया दे विच जदों दो बंदे सलामी मारदे ना, बंदा फुल बहुत जांदा है, ये सच्ची गल जी। सगों वडियाई दे नाल, संतान दे सुख दे नाल, पदार्थां दे सुख दे नाल अग होर वध गई। जिस अग नूं कोई बुझा नहीं सकिया। सच्ची गल है, मैं पढ़दा पिया सी कल एक ग्रंथ है बड़ा सुंदर, भाव रस अमृत। बड़े महान गुरसिख होया संत गुलाब सिंह जी। वो कहंदे सी तृष्णा, तृष्णा नूं मुखातब करके कहंदे मैं ना जदों इस संसार विच आया सी ते मेरियां अखां ये मेरा साथ, मेरे नाल मेरे साथी सी, मेरे कान ये मेरे नाल साथी बन के आए। कहंदे सच्ची गल है मैं अजे मरिया नहीं, पर अखां दी जोत जिहड़ी आ घट गई है। कहंदे मैं संसार विचों गया नहीं, मेरे कन्नां विचों सुनन दी शक्ति खत्म हो गई है। कहंदे वो एक एक चीज़ नूं निरूपण करदे आ। कहंदे परिवार बख्शिया सी परमात्मा ने। कहंदे हुण मैं मंजी दे उत्ते बैठा, मैं अपने पुत्तरां नाल धीआं नूं आवाज़ां पिया मारदा। वो कहंदे बुढ़ा बोली जांदा आ, वो मेरे वल ध्यान नहीं करदे। ये गुलाब सिंह जी अपनी सच्चाई दस रहे। कहंदे मेरे कान उन्हां विचों सुनन दी शक्ति घट गई, मेरे अखां विचों देखण दी शक्ति घट गई, मैं हुण चल के तुर फिर नहीं सकदा। कहंदे जिन्हां नूं मैं अपने कहंदा सी, जिन्हां वास्ते जिंदगी गवाई, वो भी मेरे नाल नहीं। पर कहंदे तृष्णा एक तू है जो पक्का मेरा साथ दे रहा। अखां दी जोत घट गई, कन्नां विचों सुणदा नहीं, लत्तां नाल चलिया नहीं जांदा। अपने जिहड़े रिश्तेदार आ, साख संबंधी, वो भी मूँह मोड़ गए। पर कहंदे तृष्णा तू इहो जिहा चिंबड़ के मेरे नाल है, हुण भी इस मौत दे मूँह दे विच भी तृष्णा मेरा साथ नहीं छड्डदी पई। महापुरख साडे वास्ते बोलदे ने, वो जिहड़ी तृष्णा 8 साल के बच्चे तो लैके 80 साल के बजुर्ग तक संसार नूं खांदी जा रही है। प्रभ का सिमरन सब ते ऊंचा तां है, क्योंकि तृष्णा बूझै हर के नाम, महासंतोख होवै गुरबचनी प्रभ स्यों लागै पूरन ध्यान। तृष्णा जिहड़ी है नाम दे विच, प्रभु की याद दे विच इहो जी ताकत है, जिस तृष्णा नूं कोई बुझा नहीं सकता, उस तृष्णा की अग नूं नाम बुझा दिंदा है। महासंतोख होवै गुरबचनी, जिहड़ा गुरु के बचनों नूं दिल च वसाउंदा है ना। तो मैं बेनती करा, प्रभ का सिमरन है गुरु के बचनों नूं दिल च वसाउणा, प्रभ का सिमरन है गुरु के मंत्र नूं दिल विच वसाउणा, प्रभ का सिमरन है वार वार गुरु की याद, वार वार गुरु की याद, वार वार परमात्मा की याद। ते कहंदे ने जिथे परमात्मा की याद बैठ जाती है, महा संतोख होवै गुरबचनी। संतोख वो नहीं हुंदा 15 प्रशादे छक के फिर बंदा कहंदा हुण संतोख कर लई। इहो जिहा संतोखी इहो जिहे बड़े होए ने संसार दे विच, माफ़ करना प्यारिओ, इनू संतोख नहीं कहते। ये ढंगौस जरूर है संतोख का, पर यह संतोख नहीं हुंदा। संतोख हुंदा हर रुखी रोटी खाए संभाले। रोटी भावें रुखी होवे पर उहदे विचों अमृत का स्वाद आवे, उस बंदे नूं संतोखी कहंदे। ते मैं बेनती करा, बिना संतोख नहीं कऊ राजै, सुपन मनोरथ बृथे सब काजै। तृष्णा संतोख तो बिना नहीं बुझनी। तो मैं बेनती करा, संतोख प्रभु के सिमरन तो बिना नहीं अंदर बैठ सकता। आप कह दें जी आप संतोखी बनीए, संतोखी बनीए, प्रभु की याद तो बिना अंदर संतोख नहीं बैठ सकता। प्रभ कै सिमरन सब किछ सुझै, प्रभु के सिमरन करके सब किछ। अर्थ टीकाकारां ने आपो अपनी मत मुताबक बड़े कीते ने। सब किछ सुझै, परमात्मा दे
जाण दा रस्ता ओहदी सोझी आ जांदी आ सोझी आ जांदी आ। मैं कहंदा जिथे पातशाह जी ने कह दिता सब कुछ उत्थे रह की गया पिछे। सब कुछ दे विच तां सारा कुछ ही आ जांदा ना, जिन्हों असीं ठेठ पंजाबी च कहंदे सब कुछ। ਉਹੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਝੈ। ਸੁਝੈ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਕਿ ਦਿਸ ਪੈਣਾ। ਤ੍ਰੈ ਕਾਲ ਦਰਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਥ ਕਥਨੀ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਐਡਵਰਟ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਿੱਖਣ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁੱਝ ਜਾਂਦਾ ਆ ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਜੋ ਹੋਆ ਹੋਵਤ ਸੋ ਜਾਣੈ। ਜੋ ਹੋਆ, ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਜੋ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਆ, ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਜੋ ਵਰਤੇਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿਸ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਅਗਾਂਹ ਤੁਰੀਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਨਾਹੀ ਜਮ ਤਰਾਸਾ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਮਾਂ ਦਾ ਤਰਾਸ, ਜਮਾਂ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਤਾਂ ਜਮ ਕਾ ਡਰ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੈਠ ਜਾਣ ਉੱਥੇ ਤੇ ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਅਣਾ ਹਉ ਅਣਾ ਤੂੰ ਅਣੈ ਛੁਟੈ ਨਿਕਟ ਨਾ ਜਾਈਓ ਦੂਤ। ਜੈ ਸਾਧੂ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਰੋਜ਼। ਇਹ ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਅਣਾ ਹੋ ਅਣਾ ਤੂੰ ਅਣੈ ਛੁਟੈ ਨਿਕਟ ਨਾ ਜਾਈਓ ਦੂਤ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਜਨ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਮਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅਕੀਦਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅਕੀਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਪੂਰਨ ਆਸਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਨੌ ਨਿੱਧ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਾਵ ਲੈ ਲਈਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਰ, ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਹੈ ਕਾਮ ਧੇਨਾ। ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਧਿਆਈਏ ਮੇਰੇ ਜੀੜੇ, ਤਾਂ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵਹਿ ਮੇਰੇ ਮਨਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਆਸਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂ, ਆਸਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਅਸਲ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ? ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਪੂਰਨ ਆਸਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਸਾ ਕਰਤਾ ਜਗ ਮੁਆ, ਆਸਾ ਮਰੈ ਨਾ ਜਾਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਸਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਤੇ ਆਸਾ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਕਿ ਆਸ਼ਾ ਕਰਨੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਭਵਿੱਖਤ ਵਿੱਚ ਆਹ ਮਿਲੇਗਾ, ਆਹ ਮਿਲੇਗਾ, ਆਹ ਮਿਲੇਗਾ, ਆਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਾਂਹ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ ਆ,
पर सच्ची गल है ਉਹੀ आसां ਜਿਹੜੀਆਂ ने तेरे गल ਵਿੱਚ जंजीरां पा के ते तैनूं अगले जन्म तक ले चलदियां ने। आसा करता जग मुआ, बंदा वड्डियां वड्डियां आसां रख के एक दिन मर जांदा आ। आसा मरे ना जाए पर आसा नहीं मरदी। बंदा चढ़ाई कर जांदा आ, बंदे दा अंत हो जांदा आ, पर एक जन्म तो अगले जन्म दे विच आसा जिहड़ी है धरू के इस बंदे नूं लई जा रही है। जिन्हों असीं पढ़दे ना अंत काल जो लक्ष्मी सिमरै, ये जिहड़े शब्द आउंदे ने ਉਹਦੇ अर्थ की ने। मैं शब्द नहीं साझा करना क्योंकि समा अपने कोल बड़ा सीमित जे, पर उस शब्द के अर्थ भाव ने तेरियां आसां तेरे गल दे विच जंजीरां बन के तैनूं धरूसी जा रही ने, तैनूं खिच के ले जा रही ने। वो बंदिया तू एक काम कर, तू जंजीरां नूं होर जंजीरां पा के ना छुट्टण की कोशिश कर। बंदा ये सोचदा कि होर जंजीरां पा के शायद मैं इन्हां बंधनां तो मुक्त हो जांगा। नहीं, तू जंजीरां नूं कट्टण की कोशिश कर। आसा करता जग मुआ, आसा मरै ना जाए, नानक आसा पूरियां सच्चे स्यों चित लाए। तू एक काम कर, तू आसा नूं ना पूरियां कर, तू पूरे परमात्मा नाल जुड़ जा, आप पूरे दा रूप हो जा। सच्ची गल है, पूरा प्रभ आराध्या, पूरा जाका नाओ, नानक पूरा पाया, पूरे के गुण गाओ। पूरे नाल जुड़ जा, पूरे नाल जदों जुड़ जाएगा कुछ भी अधूरा नहीं रह जाएगा। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं, बंदिया सच्ची गल है, प्रभ का सिमरन जिस अंदर वरतदा है ना, वो पूरा हो जाता है, पूरे दे नाल जुड़ जाता है। जिथे पूरा परमात्मा आ जाता उत्थे आसा जड़ियां अधूरियां जड़ियां भज जांदियां ने। प्रभ कै सिमरन पूर्ण आसा, प्रभ कै सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम रिद माहे समाए। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज सच्चे पातशाह कहते ने, कहते प्रभ कै सिमरन मन की मल। बंदिया तेरे अंदर मैल भरी पई है, ते तकरीबन 3 प्रकार की मैल अंदर है। एक है मल, मल के अर्थ ने जन्मा जन्मां दे पापां करके जिहड़ी इकट्ठी हुई है। दूसरी है विक्षेप, विक्षेप के अर्थ ने कि मन दियां चंचलताइयां, जदों मन तेनू टिक के बहन नहीं दिंदा, भावें बंदा चौंकड़ा मार के भी बैठा होवे पर मन इनू अंदरों नचाउंदा पिया हुंदा, उहनूं विक्षेप कहंदे आ। मल है जन्मा जन्मां दे पाप, विक्षेप है मन की चंचलताई, बंदा अडोल बैठा है चौंकड़ा मार के पर मन इहदियां टपूसियां लवा रहा। ये सच है अंदर दा। ते तीसरी गल अवरण, अवरण के अर्थ ने पड़दा। साडे विच ते परमात्मा विच जिहड़ा पड़दा बनिया होया है, जिन्हों गुरु नानक साहब जी ने आख्या सी कूड़ दी पाल, जपजी साहब च रोज़ पढ़ते। बस कुछ मिनटां दे विच समाप्ति करांगे, प्लीज़ टिका जरूर बख्शना। गुरु अर्जन देव जी महाराज के बचन ये बड़े भावपूरित ने। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते, बंदिया प्रभु का सिमरन ही दवाई का रूप धार के तेरे अंदर दी मैल नूं कटेगा। एक एक अंदर दा जिहड़ा ये माड़ा फुरना आ, ये मल जिहड़ी बनी हुई है जन्मा जन्मा दी मैल, मन की चंचलता विक्षेप के रूप दे विच, ते आखिरकार तेरे विच ते परमात्मा विच जिहड़ा पड़दा आ उहनूं पाड़ के रख देगी प्रभु की याद। सच्ची गल है। पहला आपां नाले ये भी समझ लईए, असीं कहंदे हां जी 4 दिन बाणी पढ़दे हां मन नहीं लगदा। मैं बेनती करां, ते दूजी गल ये हुंदी है बाणी पढ़दे माड़े ख्याल अखां दे सामने आउंदे आ। मैं बेनती करां, भाई वीर सिंह जी कहंदे हुंदे सी, जदों डॉक्टर ऑपरेशन करदा है ना, बंदे नूं सवाल के ते ओहदे अंदरों जिहड़ा रोग है उहनूं कट के बाहर कढ दिंदा है, पता उदों लगदा आ जदों होश आउंदी है। प्रभ कै सिमरन मन की मल जाए, प्रभु की याद विच की हुंदा आ, सब तो पहला पुराने पाप कट्टे जा रहे हैं, उस तो बाद मन हौली हौली टिकदा आ, चंचलता विक्षेप जिहड़ी दूर हुंदी है। आखिरकार प्यारिओ नाम की करदा है, पड़दे पाड़ के रख दिंदा आ, ते जिस दिन अंदर दे पड़दे पाड़ जांदे आ ना, फिर की हुंदा, अमृत नाम रिद माहे समाए। यही नाम पुराने पापां नूं विनाश करदा आ, यही नाम मन नूं टिका बख्शदा आ,
यही नाम मन दे पढ़दे पाड़ के रख दिंदा आ, यही नाम फिर अमृत रूप धार के ते बंदे दे अंदर वस जाता है। अमृत नाम रिद माहे समाए, प्रभ जी बस हैं साध की रसना। धन गुरु अर्जन देव, धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते जिस दे अंदर परमात्मा की याद वस जाए ना, जे दे अंदर प्रभ कै सिमरन की दात ये वरत रही है, धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते उस गुरमुख की जुबान उत्ते परमात्मा का नाम, उस मनुख की जुबान उत्ते परमात्मा जी आप बैठ जाते हैं। प्रभ कै सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम रिद माहे समाए, प्रभ जी बस हैं साध की रसना, नानक जन का दासन दसना। प्रभु अपने प्यारिਆਂ की जुबान ते आप बैठ जाते ने। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते मैं ऐसे गुरमुख प्यारिਆਂ ਦੇ दासां ਦਾ दास बन जावां। प्यारिओ आओ इतनियां बेनतियां प्रवान करदियां कल इस तुक नूं अगाह लैके जावांगे। प्रभ जी बस है साध की रसना, क्योंकि मुकम्मल तौर पर भावें गुरबाणी की व्याख्या हो नहीं सकती। मेरा मन है थोड़ा चिर होर इस ते कल लावांगे। गुरु साहब जी कृपा करन, आप जी संगत बख्शो असीस। भुलां चुका दी खिमा बख्शणी जी। अखीरलियां पंक्तियां इस पौड़ी दियां पढ़ के समाप्ति करदे हां जी। प्रभ जी बस है साध की रसना, नानक जन का दासन दसना। भुलां चुका दी खिमा बख्शो जी। फतेह बुलाउणी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सतनाम वाहिगुरू जी।